Yes, today the next, that is the fifth cranial nerve, that is CN5 trigeminal nerve. So just introduction to the trigeminal. So it is a fifth cranial nerve and it is a largest cranial nerve among the 12 pairs of the cranial nerves, because it is having the so many branches, and this nerve, it will act as a sensory as well as the motor. Okay, sensory as well as a motor. So here, so when you see the name trigeminal, so trigeminal means tri means there are three. Okay, so there are three main branches. There are three main branches. That's why it is the name trigeminal. So we'll see what are the branches of the three main branches, and its nucleus and its cores and its branches and its supply. So so the nucleus of the trigeminal nerve will be at the pons. So again, our central nervous system, midbrain, pons, medulla and the spinal cord. So this is the pons. Okay, from the pons, now what is the exit point of the trigeminal nerve? That is from the pons, that to anterolateral part of the pons. So this is the anterior and this is the lateral. So anterolateral part of the pons. So ये जो fifth cranial nerve है, so it will exit. So it will exit from the anterolateral part of the pons on both sides. So this is at left and this is on right side. So this is the exit point from the pons. And we'll go to the internally, the pons. When you take a section of the pons, so we'll see that too will जब हम लेते हैं, so section of the pons at the middle level. So जब middle level pons का section अगर लेते हैं, so there we will have the nucleus of the trigeminal nerve. So for that, so I will take one more diagram. So that is on lateral view. So this is the midbrain, pons, medulla and the spinal cord, and the cerebellum with spinal cord. Okay, this is our central nervous system, lateral view. So this is our pons. So in the middle portion, in the deeper part of the pons, there is a nucleus at the middle level of the pons. At the deeper middle level of the pons, there is a nucleus. So this is a nucleus. So what we can say, the principal nucleus of the trigeminal nerve. So this is the main nucleus for the trigeminal nerve. So, and one more thing every student should know, so the main nucleus will be in the pons. Even this sensory functional part of the nucleus, मतलब यहाँ पे जो trigeminal nerve, it will act as the both sensory as well as the motor. जो sensory impulses के लिए जो nucleus है, so that nucleus will be principal within the pons. With the pons, even that nucleus will be present in the midbrain also, and even it will be present in the remaining portion of the pons as well as the medulla, and still some portion of the, that is till the spinal cord jo segment, that is a C2 segment. So when you take a segment C1, C2, okay, so till the C2 segment of the spinal cord also we will have the nucleus of the trigeminal nerve. Okay, main principal nucleus will be in the pons, but with this the sensory nucleus main is here, but with this there will be in the midbrain, there will be in the medulla, and even at the starting two segments of the spinal cord also will have this nucleus. And the nucleus which is present here, okay, so which is present in the medulla and which is present in the upper part of the spinal cord, so this nucleus is known as spinal nucleus of trigeminal nerve. So ये हमने देखा था while study the medulla and the pons पढ़ते वक्त. So when you take a section of the different level of the medulla and the pons, वहाँ पे एक
एक ग्रे मैटर हमने देख रहा था ना, जो न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, हर जगह पे आपको मिल रहा था ना, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ऑफ द spinal nucleus of the trigeminal nerve. So this is the spinal nucleus of the trigeminal nerve, and this is a principal nucleus of the trigeminal nerve. And यहाँ पे जो मिड ब्रेन में जो रहता है, सो मिड ब्रेन में जो न्यूक्लियस रहता है, सो दिस इज व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, मिसेनकाइमल या मिसेनकाइमल न्यूक्लियस, मिसेनकाइमल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो जो मिसेनसेफलॉन में रहता है, जो मिड ब्रेन में रहता है. सो यहाँ पे भी मिड ब्रेन में व्हेन यू टेक ए सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन, सो विल हैव द वन ग्रे मैटर, दैट इज द मिसेनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो दिस इज द मिसेनसेफलिक न्यूक्लियस. सो दिस इज द मिसेनसेफलिक न्यूक्लियस, दिस इज द प्रिंसिपल न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल. ये पूरा जो है इट इज़ एन पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये सभी न्यूक्लियस विच विल कलेक्ट द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब ओनली द हेड एंड द फेस, स्पेशली द फेस रीजन. सो कंप्लीट फेस रीजन, जो हेड रीजन से जो सेंसेशन, दैट इज अ जनरल सेंसेशन, दैट इज टच, पेन, टेम्परेचर. सो जनरल सेंसेशन, टच, पेन, टेम्परेचर, जो इम्पल्सेस है, दोज सेंसरी इम्पल्सेस विल बी कैरिड बाय द सेंसरी इम्पल्स विल बी कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व. ये पूरा आपका जो फेस रीजन का जो इवन द हेड, सो कंप्लीट हेड एंड द कंप्लीट फेस रीजन, ये जो पूरा रीजन का जो पेन जनरल सेंसेशन, द टच, पेन, टेम्परेचर, ये जो सेंसेशन, सो दैट विल बी कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व. सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का हमने जो देखा था, जो स्पाइनल कॉर्ड में, जो असेंडिंग ट्रैक में, डॉर्सल कॉलम एंड द एंटेरो लैटरल कॉलम में. बट यहाँ पे सो जो इज फ्रॉम द ओनली हेड एंड द फेस, सो ये इसका जो यहाँ पे आ जाएगा. नाउ सो व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियस विल द पॉन्स, मिड ब्रेन, मेडुला, और ये तो सेंसरी न्यूक्लियस है. इवन यहाँ पे इट विल एक्ट एज ऑल्सो मोटर, ऑल्सो मोटर भी एक फंक्शन करता है. सो फॉर द मोटर देर इज वन मोर न्यूक्लियस बिसाइड द प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो ये दिस इज द प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल, जो सेंसरी पार्ट है या सेंसरी इम्पल्सेस के लिए. और दूसरा जो उसके साथ जो और एक न्यूक्लियस रहता है, दैट इज अ मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो दिस इज अ मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो ये मिसेनसेफलिक न्यूक्लियस, प्रिंसिपल न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. नाउ सो यहाँ से जो एग्जिट होते हैं द नर्व फाइबर, ओके, सो दिस इज नर्व फाइबर, दिस इज एक्सॉन. सो ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में पार्ट है, और ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम पार्ट. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है. सो ये जो पार्ट है, सो यहाँ से जो आगे जाने वाला है, सो दैट इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम. जब एक बार सो सेंट्रल नर्व सिस्टम पार्ट पे जो एग्जिट होता है, बाहर आ जाता है, सो दैट विल बी ए पेरिफेरल नर्व सिस्टम. और ये जो एक्सॉन है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर है, यहाँ पे विद इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम, सो दिस पार्ट विल बी द सेंट्रल नर्व सिस्टम, दिस इज विल बी द पेरिफेरल नर्व सिस्टम. ये स्ट्रक्चरली अगर देखा है, सो अगर आप सेल के हिसाब से उसका स्टडी क्या है, उसका एनाटॉमिकल के हिसाब से अगर स्टिल जो उसका शीथ के हिसाब से अगर देखेंगे, द शीथ, द माइलिन शीथ ऑफ द दिस एक्सॉन विल हैव द स्क्वान सेल्स. The myelin sheath of this axon will have the oligodendrocytes. So इसी डिफरेंस से हम डिवाइड करते हैं कि दिस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट, दिस इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट. सो यहाँ पे भी द ट्राइजेमिनल नर्व विच विल एग्जिट फ्रॉम द दिस न्यूक्लियस फॉर द सेंसरी एस्पेक्ट, एंड उसके साथ एक मोटर नर्व फाइबर भी आता है. ओके, नाउ सो ये बाहर आने के बाद नाउ विल सी द कोर्स. सो आगे ये कहाँ पे जा रहा है और क्या कर रहा है. सो फॉर दैट, सो दिस इज आवर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. So we are in the brainstem will be in the posterior cranial fossa. So posterior cranial fossa में this is our midbrain, so pons, medulla and the spinal cord. Okay, so here in the
पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सो ये जो नर्व आ रहा है फ्रॉम द पोन्स, सो ये आ गया पोन्स. ओके, सो जब ये पोन्स से जो बाहर आता है नर्व, सो वेयर इट गोज, इट एंटर्स इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा. सो मिडल क्रेनियल फोसा में कल हमने देखा था. सो दिस इज अवर सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल. सो सेला टर्शिका, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड द फोरामिना मैग्नम. सो ये जो पार्ट है, सो विच डिवाइड्स द मिडल क्रेनियल फोसा टू द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. सो दिस इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. This is the petrous part of the temporal bone. So here at the medial aspect of the petrous part of the temporal bone, here in this area. Okay, so at the medial aspect of the petrous part of the temporal bone, यहाँ पे एक ganglion मिलता है. So this is known as a trigeminal ganglion. So it is a sensory ganglion. So हमने देखा था जो ascending tracts of the spinal cord में, spinal cord के लिए कैसा रहता था, this is your spinal cord. Okay, so this is your spinal cord. जो sensory fibers जो आते थे, so it is from the posterior horn. So before entering into the posterior horn, so there will be a, what is this, a dorsal root ganglion. Spinal cord में हमने देखा था. So dorsal root ganglion. So whatever the sensory nerve fibers जो आते थे spinal cord, so they will pass through the dorsal root of the ganglion, dorsal root ganglion of the spinal cord, and from this ganglion so to the posterior horn. So जितने भी ये sensory impulses, sensory nerve fibers, they will pass through the dorsal root ganglion of the spinal cord. Okay, वो lower part. अगर ये यहाँ पे जो sensory impulses कहाँ से आ रहे हैं, from the head and the face, और यहाँ से भी जो सेंसरी इम्पल्सेस जो जा रहे हैं, यहाँ से जो नर्व फाइबर जो जा रहे हैं सेंसेशन, सो दोज नर्व फाइबर ऑल्सो क्रॉस थ्रू द गैंग्लियन. सो दैट इज नोन एज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो कहाँ पे रहता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन? एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. सो ये जो पॉइंटेड एलिवेटेड पार्ट रहता है पेट्रस पार्ट, उसी मीडियल साइड में एक गैंग्लियन रहता है. So approximately it will be here. Okay, so I will make it a larger one. So this is a trigeminal ganglion. So whatever the nerve fibers, okay, यहाँ से जो निकल रहे, especially the sensory nerve fibers, the sensory nerve fibers from the nucleus of the trigeminal nerve. So यहाँ से जो निकल रहे हैं जो nerve fibers, so एग्जिट मतलब पॉन से एग्जिट होने के बाद, सो दे विल पास टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो यहाँ पे रहता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो फ्रॉम द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन अगेन इट विल हैव द 3 ब्रांचेस. अभी यहाँ पे आता है आपका ट्राइजेमिनल का जो मेन 3 ब्रांचेस, ट्राई द 3. सो ट्राइजेमिनल 3 ब्रांचेस. सो फ्रॉम द trigeminal ganglion, so it will have the 3 main branch. So this is 1, this is 2 and this is 3. Okay, now what are these 3 branches? So ये जो 3 branches है वो कौन से है? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट वन V1, V2 and V3. So V1 होता है that is ophthalmic. Ophthalmic nerve, that is the first branch of the trigeminal. And second one maxillary, this is a V2. So ये V1, ये V2 और जो V3 है that is mandibular nerve. So nucleus will be in the pons and the 2 sensory nucleus will be in the almost the brain stem, and the motor nucleus will be in the pons only, the deeper part of the pons. Now after exit of the sensory nerve fibers, ये जो nerve fibers, sensory nerve fibers, so they will cross through the trigeminal ganglion, so that will be present in the medial aspect of the petrous temporal bone. Then after passing the trigeminal ganglion, जैसे यहाँ पे
जो भी सेंसरी नर्व फाइबर जो स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, सो दे विल पास टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। सेम यहाँ पे भी जो भी सेंसरी इम्पल्सेस जो लेके आ रहा है ये ट्राइजेमिनल नर्व फ्रॉम द फेस एंड द हेड, सो दोज नर्व फाइबर्स दे विल पास थ्रू द ट्राइजेमिनल न्यूरो गैंग्लियन, देन दे विल गो टू द इट्स न्यूक्लियस पार्ट। So इसीलिए so this is an trigeminal ganglion and from this there are three branches V1, V2, V3. So ophthalmic, maxillary, mandibular. So यहाँ पे है ना, इसलिए मैंने बताया this is an largest cranial nerve because ये जो तीन cranial nerve again we have to deal, एक एक आपको स्टडी करना है डिटेल में। सो एक एक नर्व मतलब अगेन इट विल टेक वन क्लास ईच, बट हम सो विल कंक्लूड करके एक एक क्लास में विल कंप्लीट करना है हमें। सो देयर आर थ्री मेन, ये इंडिविजुअल आपको पूरा इसका कोर्स ब्रांचेस सप्ले आपको दिखना है ना। सो ये जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से जो कनेक्टेड है, सो दोज आर ओनली द सेंसरी नर्व फाइबर्स, बट और एक उसका नर्व फाइबर है दैट इज फ्रॉम द मोटर न्यूक्लियस। सो मोटर नर्व फाइबर सो भी इसके साथ ही आता है, बट सो मोटर नर्व फाइबर्स इट वोंट कनेक्ट टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जिस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के साथ वो कनेक्ट नहीं रहता है। सो थ्रू दिस सो इट विल ना, एक मिनट, या द V1, V2, V3 ये थ्री मेन ब्रांचेस। नाउ द मोटर नर्व फाइबर फ्रॉम द मोटर न्यूक्लियस, सो इस मोटर न्यूक्लियस से जो निकल रहा है मोटर नर्व फाइबर, सो वो जो बाहर आने के बाद इट वोंट कनेक्ट टू द, इट वोंट पास टू द गैंग्लियन। सो ये डायरेक्टली इंडिविजुअली वो पास हो जाता है, और ये इंडिविजुअली जो पास होता है उसके बाद सो इट विल पास थ्रू द V3। ये जो V3 है दैट इज अ मैंडिबुलर नर्व। सो वो मैंडिबल नर्व के साथ वो मोटर नर्व फाइबर पास हो जाता है। ओके नाउ तो फर्स्ट कोर्स एग्जिट बाहर आने के बाद सो गैंग्लियन हो गया। सो गैंग्लियन के बाद जो नर्व जा रहे हैं, जो थ्री नर्व्स, सो V1, V2, V3, सो ये तीनों नर्व विथ मोटर नर्व फाइबर्स। सो ये अभी कहाँ पे है? नाउ इट इज इन योर मिडिल क्रेनियल फोसा। सो मिडिल क्रेनियल फोसा में यहाँ पे भी सो दीज थ्री, so these among the three, these two, that is V1 and V2, so that is ophthalmic and maxillary nerve. So these two nerve also pass through the again cavernous sinus, that is lateral wall of the cavernous sinus. कल का जो हमने देखा था कौन कौन से, oculomotor nerve, trochlear nerve, abducent nerve. So oculomotor and the trochlear they will pass through the wall of the lateral wall of the cavernous sinus, whereas the abducens nerve, so it will pass within the cavernous sinus. The same thing, now these fibers, though these, that is V1, V2 fibers also cross through the cavernous sinus. तो उसके लिए so I will make it little bit a larger one. So this is the middle cranial fossa and this is anterior cranial fossa. So now middle cranial fossa, so this is our this is the cavernous sinus and this will be the lateral wall of the cavernous sinus. Now, so first one ophthalmic, second maxillary, third mandibular. First ophthalmic, okay, we'll take one. So ophthalmic. So ophthalmic nerve after exit from the trigeminal ganglion, so this nerve it will pass to the again lateral wall of the cavernous sinus. Okay, this is the lateral wall of the cavernous sinus. देन उसके ऊपर जो क्या था हमने कल का जो दो नर्व्स, सो दिस इज द oculomotor nerve and this is the trochlear nerve. So this is oculomotor nerve, this is trochlear nerve. Now the third one, this is the ophthalmic nerve. This is the ophthalmic nerve, and even the second one, there is a maxillary nerve. So maxillary nerve is also passes through the same, that is also in the lateral wall of the cavernous sinus. Okay, so ये जो अगर हम निकाल देते हैं oculomotor and trochlear निकाल देते हैं, so oculomotor and trochlear. So now I am giving only two, ophthalmic and the maxillary. mandible यहाँ से पास नहीं होगा, so ये खाली ये दो V1, V2. Now सो आफ्टर दिस ये क्या करेगा आगे इसका कोर्स, एंड उससे पहले
we know that there are three main branches: ophthalmic, maxillary and the mandibular. Among these three, the first 1 and 2, that is ophthalmic and the maxillary, are a pure sensory nerve fibers. So ये जो nerve है, ophthalmic nerve and the maxillary nerve, these two are a pure sensory. तो यहाँ पे so this nerve which is having the only the sensory impulses, whereas third one, a mandibular nerve. So mandibular nerve is a mixed one. So it will be a sensory as well as a motor part. So it contains the sensory as well as a motor part. So इसलिए अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे two the cranial nerves V1 V2, that is purely a sensory part या sensory fibers रहते हैं. Now after exit from the lateral wall of the cavernous sinus, वो कहाँ पे जाते हैं? First ophthalmic. So ophthalmic मतलब ophthalmic that is related to the eyeball, means ये eyeball related मतलब वो कहाँ पे जाएगा? cranial के orbital cavity में जाएगा. So orbital cavity में enter होने के लिए जो opening है, again a superior orbital fissure. So this ophthalmic, ये जो nerve है, because middle cranial fossa, anterior cranial fossa, so यहाँ पे आपका रहेगा the orbital cavity, so यहाँ पे है. So and this is the, what is this? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो अगर देखेंगे तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कैसा रहेगा? सो इट इज़ लाइक दिस. सो दिस इज़ अ टेंडिनस रिंग. कल हमने जो देखा था टेंडिनस रिंग, लैटरल पार्ट, मीडियल पार्ट एंड कंप्लीट मीडियल पार्ट. सो ये जो ऑफ्थल्मिक नर्व थ्रू द superior orbital fissure, it will enter into the orbital cavity. It will enter into the orbital cavity. But here, so before entering into the orbital cavity, this ophthalmic nerve, it will have three branches. Again, ऑफ्थल्मिक नर्व यहाँ से पास हो गया, फ्रॉम द गैंग्लियन से आ गया, देन इट पास थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. देन कैवर्नस साइनस से जब एग्जिट होता बाहर आ जाता है, सो एट द टाइम इट विल हैव द थ्री ब्रांचेस. सो देर आर थ्री ब्रांचेस, 1 2 3. देन व्हाट आर द थ्री ब्रांचेस? सो यहाँ पे सो इसका ऑफ्थल्मिक नर्व. सो थ्री ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थल्मिक नर्व. So among this, one is the lacrimal nerve, branch of the ophthalmic nerve. Then first one and second one, the frontal nerve. Then third one, nasociliary nerve. सो सभी नर्व का नाम आपको याद रखना है. फर्स्ट ट्राइजेमिनल नर्व, थ्री ब्रांचेस, ऑफ्थल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर. सो अमॉन्ग दीज टू द फर्स्ट ऑफ्थल्मिक. सो अगेन ऑफ्थल्मिक आफ्टर पासिंग थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, इट विल हैव द थ्री ब्रांचेस. सो लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड द नेसोसिलियरी नर्व. सो ये तीनों नर्व, सो दे विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द सेम दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो यह जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है लैटरल पार्ट से जो है ना, लैक्रिमल एंड द फ्रंटल. सो लैक्रिमल एंड द फ्रंटल, सो दिस इज अ लैक्रिमल, दिस इज अ फ्रंटल. सो लैक्रिमल फ्रंटल नर्व, दे विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द लैटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये पूरा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, बट इसमें ये जो है ओनली द लैटरल पार्ट. सो इस लैटरल पार्ट से ये दो क्रेनियल नर्व, सो ये दो नर्व, सो दे विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी. वेर एज नेसोसिलियरी नर्व, सो इट विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द दिस वन, दैट इज अ मेडियल पोर्शन ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो इस लैटरल पोर्शन में तीन नर्व एंटर हो जाते हैं. एक हो गया लैक्रिमल, दूसरा फ्रंटल, तीसरा जो हमने कल देखा था ट्रोक्लियर. सो दिस इज अ ट्रोक्लियर. सो यहाँ पे आप याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर LFT. LFT इज अ लिवर फंक्शन टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट. सो LFT, सो यहाँ पे LFT होता है
L means lacrimal, F frontal, T trochlear. So trochlear, there is a fourth cranial nerve. ये तीनों cranial nerve they will enter into the orbital cavity through the lateral part of the superior orbital fissure. Whereas medial portion से सभी यहाँ पे oculomotor भी यहीं पे था, abducens भी यहाँ पे था, even the nasociliary is also from same. So if you think this is a superior division of the oculomotor nerve, inferior division of the oculomotor nerve, और उसके साथ जो sympathetic nerve fiber भी था, and abducent nerve, and this is a nasociliary nerve. So ये सभी यहाँ से, मतलब total all the nerves which will enter into the same area, that is the orbital cavity. But the difference is वही ओपनिंग है, उस ओपनिंग में हमें दो अलग अलग करके आपको दिखाना रहता है. यस नाउ सो अभी क्या हो गया, ये तीनों क्रेनियल नर्व, सॉरी ये तीनों नर्व लैक्रिमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी, सो दे एंटर्ड इनटू द ऑर्बिटल कैविटी. नाउ व्हाट हैपेंस, सो उससे पहले विल टेक दिस, टेक आउट दिस. ओके, दिस इज अवर ऑर्बिटल, दो आई बॉल जो रहता है यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी. ओके नाउ सो ऑफ्थैल्मिक में ये तीनों, अभी जो हम देखेंगे ऑर्बिटल कैविटी फ्रॉम द इंटीरियर व्यू, अभी जो देख रहे हैं हम लैटरल व्यू, सो विल सी द इंटीरियर व्यू. सो हाउ इट लुक्स, सो दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द ऑर्बिटल. दिस इज द बॉर्डर जो हमने देखा था ना, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, इन्फीरियर बॉर्डर, मीडियल लैटरल बॉर्डर जो, सो दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी, दिस आर द बॉर्डर्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी. एंड पोस्टीरियरली क्या दिखेगा आपको, द ओपनिंग, दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे है, सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट. तो इसको समझने के लिए सो आई विल मेक इट लाइक दिस. So now we are in the orbital cavity. सामने से आप ऑर्बिटल कैविटी देख रहे हैं. सो व्हेन यू पास योर फिंगर, सो ये कहाँ पे जाएगा, एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट विल फाइंड द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. नाउ फर्स्ट वन लैक्रिमल. सो यहाँ से आगे आपका लैक्रिमल. सो ये जो रिंग कैसा हो गया, दिस इज अ टेंडिनस रिंग ऑफ द रेक्टाइल मसल्स. सो अभी ये यहाँ पे रिपीट करने का नेसेसरी नहीं है. सो ये जो लैक्रिमल नर्व है यहाँ से जो निकलते हैं थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सो इट विल पास थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी. ये जो लैटरल वॉल से ये पास होता है. देन एट द पॉइंट हियर देयर इज वन ग्लैंड, व्हाट इज इट, लैक्रिमल ग्लैंड. एक लैक्रिमल ग्लैंड रहता है. सो ये जो इट विल पास थ्रू द लैक्रिमल ग्लैंड. सो ये लैक्रिमल ग्लैंड के लिए क्यों जा रहे हैं, फॉर द सेंसेशन पर्पज, नॉट फॉर इट्स सीक्रेशन. लैक्रिमल ग्लैंड के सीक्रेशन के लिए दूसरा नर्व होता है, बट लैक्रिमल ग्लैंड का जो सेंसेशन के लिए दैट इज अ लैक्रिमल नर्व. देन इट विल पियर्स द लैक्रिमल ग्लैंड, देन इट कम, सब बाहर आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये इधर बाहर आ गया. सो बाहर आने के बाद सो ये क्या करेगा, सो इट विल सप्लाई टू द, दैट इज लैक्रिमल नर्व, इट विल सप्लाई टू द एक्सटर्नली, यहाँ ऊपर जब आ जाता है, सो इट बाहर आने के बाद, सो इट सप्लाइज टू द व्हाट इज दैट, द कंजंक्टिवा एज वेल एज लोअर आईलिड. सो लोअर आईलिड एंड कंजंक्टिवा, सो दैट इज सप्लाइड विद द लैक्रिमल. ओके, एंड इवन सो दैट what we can say, the some of the fibers which will come downwards, where it will supply the sensory supply to the, even this lower part हो गया, even the this lower portion of the eye, ये जो lower portion of the skin जो रहता है यहाँ से जो, this is a lacrimal nerve, यहाँ से जो sensation जो carry करता है वो lacrimal nerve. So ये lacrimal for the sensation from the lacrimal gland and conjunctiva and even the cornea also. So even the cornea also, so corneal reflex जो देखते हैं to examine the lacrimal nerve. So corneal reflex, अगर कोई sensation वहाँ से जा रहा है, so means lacrimal nerve is normal. So अगर absence of the corneal reflex, it shows there is an
प्रॉब्लम विद द लैक्रिमल बिकॉज लॉस ऑफ सेंसेशन, वो सेंसेशन कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए लैक्रिमल नर्व का डैमेज यहाँ पे पता चलेगा. सो दिस इज़ द लैक्रिमल नर्व. यहाँ से पास होके सो ये यहाँ पे इट्स अप्लाइज टू द कॉर्निया, कंजंक्टिवा, लोअर आईलिड एंड इवन द स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द आई. जो आई के नीचे का जो स्किन पार्ट रहता है, सो वहाँ से वो सेंसरी इम्पल्सेस वो कैरी करता है लैक्रिमल नर्व. देन फ्रंटल नर्व. सो फ्रंटल नर्व, सो इट इज़ फ्रॉम द फ्रंट साइड, यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज़ फ्रॉम द फ्रंट. सो ये भी ऐसे फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट से यहाँ से आ जाएगा ऑर्बिटल कैविटी से. सो विच इज़ एग्जिट फ्रंटली. और ये जो बाहर आते हैं, ये जो नर्व फ्रंटल नर्व जो बाहर आता है, सो बाहर आने के बाद इट बिकम्स द सुपीरियर ऑर्बिटल सुप्रा ऑर्बिटल नर्व. सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो हमने देखा था यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर. सो स्कल में देखा था हमने सुपीरियर ऑर्बिटल जो लाइन है, तो उस लाइन में आपको एक मिलता है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और फिशर. थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, सो दिस फ्रंटल नर्व वो एग्जिट होके देन इट विल कंटिन्यू एज ए सुप्रा ऑर्बिटल नर्व. सो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व विच गोज अपवर्ड्स एंड इट्स अप्लाइज टू द लोअर पोर्शन ऑफ द फोरहेड. ये जो फोरहेड का नीचे का पार्ट है, सो दिस पार्ट विल बी सेंसरी सप्लाई बाय द यूर फ्रंटल. सो ऑलमोस्ट ये जो फोरहेड रीजन, जो लेफ्ट साइड राइट साइड, ये दोनों ये पूरा फोरहेड रीजन का जो सेंसेशन जो कैरी करता है, दैट इज़ द फ्रंटल नर्व. सो फ्रंटल नर्व इट इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक नर्व. सो ऑफ्थेल्मिक नर्व इज़ द ब्रांच ऑफ अ ट्राइजेमिनल नर्व. Okay, now so this is the lacrimal and frontal and the nasociliary. So nasociliary ये भी यहाँ पे एंटर होने के बाद so it will supply the ciliary body. So eyeball में जो आपको पढ़े हैं the ciliary body. So that ciliary body is supplied by the sensory supplied by the nasociliary. And even the ciliary body के साथ साथ यहाँ पे जो nasal आते हैं, nasal मतलब यहाँ पे so nasal sinuses. So nasal sinuses from the nasal sinuses एंड फ्रॉम द सिलेरी बॉडी जो सेंसेशन जो कैरी करता है जो नेजो सिलेरी नर्व. सो दी सेंसेशन ये पूरा ऐसे कैरी करेगा. ओके, सो दिस इज़ द ऑफ्थेल्मिक नर्व. देन उससे पहले और एक मैं आपको थोड़ा पीछे जाते हैं. सो उसके लिए जो डायग्राम है ये वाला पॉन्स मेडुला. ओके, सो ये थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. सो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल न्यूक्लियस, दिस इज़ द मोटार न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल एंड दिस इज़ मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड दिस इज़ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो यहाँ पे जो तीनों क्रेन जो नर्व्स है इसका ब्रांचेस, दिस इज़ द गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो फ्रॉम द गैंग्लियन ये जो आपको नर्व फाइबर आ रहा है, सो इससे पहले दिस इज द ऑफ्थेल्मिक नर्व, दिस इज द मैक्सिलरी नर्व एंड दिस इज द मैंडिबुलर नर्व. सो ये तीनों जो सेंसरी नर्व्स, सेंसरी इम्पल्स जो कैरी कर रहे हैं फ्रॉम द फेस, सो थ्रू द गैंग्लियन, थ्रू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, सो दे विल एंटर इनटू द पॉन्स. सो यहाँ पे पॉन्स में द सम ऑफ द फाइबर्स दे विल एंड अप विद द principal nucleus of the trigeminal nerve and some of the impulses so they will go to the mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve and some of the fibers so they will connect to the here also. So especially the pain and temperature जो sensation जो रहते हैं, so those sensation so they will जो carry करते हैं fibers so they will end up with the here the nucleus which is a spinal nucleus of the trigeminal nerve and the touch जो sensation होते हैं so that is with the here and some of the fibers here. So ये जो total nerve fibers ये पूरे nucleus के साथ वो connect रहते हैं. Then after receiving the sensory impulses from the face and the head, that is general sensation, touch, pain, temperature, and now ये जो sensation लेने के बाद it should go upwards जो higher center के लिए जाना है. So higher center जाने के लिए and from this there is a one more tract, ये यहाँ से इधर से इधर से. So जो impulses इस nucleus में आ गया, so those impulses will be carried to the higher center. So higher center जाने के लिए यहाँ पे एक
ट्रैक्ट फॉर्म होता है. व्हाट इज दिस ट्रैक्ट? दिस ट्रैक्ट इज नोन एज ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस. दिस इज द ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस. सो हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड में जो मेडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस, ओके, जो असेंडिंग ट्रैक में. यहाँ पे देयर इज वन मोर लेमनिस्कस, दैट इज अ ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, एंड दिस लेमनिस्कस विल बी प्रेजेंट ओनली इन द ब्रेन स्टेम. ये खाली ब्रेन स्टेम, ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आता है. स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो भी इतना ही, दैट इज एट द C1 C2 सेगमेंट तक उतना ही रहेगा. सो यहाँ से जो जा रहा है जो ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज trigeminal lemniscus. What it contains? The trigeminal lemniscus, the tract, the ascending tract, which contains the fibers of the general sensation from the, that is touch, pain, temperature sensation from the head and the face. यहाँ से जो touch, pain sensation जो कैरी करने वाले जो fibers, जो एक tract बनता है, जो ascending tract, this is the trigeminal lemniscus. And this trigeminal lemniscus, it will go to the again thalamus. थैलामस जो हमने पढ़ा था फिर से, दिस इज द थैलामस, ओके. एंड ये जो हमने दिखा बनाया था वेंट्रोलैटरल, इसमें जो 3 था, तो इसमें जो ये जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, सॉरी ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट, दैट इज ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, दे विल एंड अप विद द थैलामस. कहाँ पे थैलामस में? दैट इज हियर. दिस इज वेंट्रो lateral and posterior, sorry ventro